السلام علیکم دوستو، بہت دنوں کے بعد آپ لوگوں کے بیچ میں ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ بہت بچوں کا کمنٹ آ رہا تھا کہ سر اردو کی پوری تیاری کرائیے، تو وہ بچے گھبرائے نہیں۔ اب میں یوٹیوب پر فری کریش کورس لے کر آیا ہوں، جس سے آپ لوگوں کی اردو کی پوری 100% تیاری ہو جائے گی۔ بس آپ لوگ میرے ساتھ بنے رہیں، میرے ساتھ جڑے رہیں، اور آپ لوگوں کی تیاری اچھی تیاری ہو جائے گی۔ کم وقتوں میں، کم دنوں میں، کم ٹائم میں آپ لوگوں کی تیاری کیسے کرائی جائے، میں پورا پلاننگ سیٹ کر لیا ہوں کہ کیسے میں کتنا ایک روز میں پڑھاؤں گا، کیا کروں گا، نہیں کروں گا۔ ایک دم پلاننگ کے تحت میں چل رہا ہوں، اور آپ لوگوں کی پوری سلیبس جو ہے اردو کا ختم کرانے کا میں وعدہ کرتا ہوں۔ تو آج چلیے میں ویڈیو اسٹارٹ کرتا ہوں، لیکن ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں کچھ انفارمیشن دے دوں کہ آج کا جو ویڈیو ہے اس میں 2 چیپٹر کو کور کرنے والا ہوں۔ فرسٹ چیپٹر ہوگا مٹی کا تیل، جن کے مصنف خواجہ حسن نظامی ہیں، اور سیکنڈ چیپٹر ہوگا بعض پرانے لفظوں کے نئی تحقیق، جن کے مصنف جو انگلش میں رائٹر بولتے ہیں وہ سید سلیمان ندوی ہیں۔ تو ہم لوگ اس میں صرف ویسے چیزوں کو پڑھیں گے جو ایگزام کے لیے یوزفل ہے، اور آبجیکٹیو اور 2 نمبر کا جو کوشچن ہے میں اس میں کور کروں گا، اور جو 5 نمبر میں آتا ہے سبجیکٹیو، میں اس کا لسٹ آپ لوگوں کو دے دوں گا۔ 2 سے 4 روز میں آپ لوگوں کو اس کا PDF بھی مل جائے گا۔ ابھی اس پر کام چل رہا ہے، وہ میں گیس کوشچن بنا رہا ہوں 5 نمبر والا۔ تو یہ ویڈیو میں جو ہے سب مختصر ترین سوالات اور آبجیکٹیو، ایک آبجیکٹیو سالو ہوں گے، مختصر ترین سوالات سالو ہوں گے۔ تو چلیے میں اب ویڈیو اسٹارٹ کرتا ہوں۔ سب سے پہلے جو ہے مٹی کا تیل، تو مٹی کے تیل کے مصنف کون ہیں؟ خواجہ حسن نظامی۔ تو آبجیکٹیو یہاں سے آتا ہے کہ خواجہ حسن نظامی کے بارے میں کچھ جو رہتا ہے وہ پوچھا جاتا ہے کہ وہ کب پیدا ہوئے، ان کی وفات کب ہوئی، ان کے والد کا نام کیا تھا، والدہ کا نام کیا تھا، بیوی کا نام کیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو میں آپ لوگوں کو سب کچھ اس میں کور کروں گا۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ یہ جان لے کہ خواجہ حسن نظامی کی پیدائش کب ہوئی۔ تو خواجہ حسن نظامی کی پیدائش دسمبر 1878 میں ہوئی۔ کہاں ہوئی یہ بھی آ سکتا ہے کہ کہاں ہوئی، تو اندرون کوٹ بستی حضرت نظام الدین اولیاء میں ہوئی۔ یہ کلیئر ہو گیا۔ اور اب وفات کی طرف آتے ہیں کہ خواجہ حسن نظامی کی وفات کب ہوئی۔ تو ان کی وفات 31 جولائی 1955 کو ہوئی۔ خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے وفات سے 50 سال قبل ہی اپنی جو قبر ہوتی ہے وہ تیار کرا لی تھی۔ کہاں کرا لی تھی یہ بھی آ سکتا ہے، تو وہ نظام الدین اولیاء میں ہی قبر بستی جو ہے تیار کرا لی تھی۔ ان کی 2 شادی ہوئی۔ خواجہ حسن نظامی جو تھے ان کی 2 شادی ہوئی۔ پہلی بیوی کا نام سیدہ حبیب بانو تھا، اور دوسری بیوی کا نام محمودہ خواجہ بانو سے تھا۔ خواجہ حسن نظامی کی شادی کتنے سال میں ہوئی؟ تو ان کی شادی 18 سال میں ہوئی تھی۔ آپ لوگ یہ سب چیزوں کو یاد کر لیں گے، اور ایک کاپی بنائیں گے، اس کا اچھا سا نوٹس بنائیں گے، اور جو بات آپ لوگوں کو میں بول رہا ہوں اس میں ویڈیو میں نہیں لکھا ہوا ہے، وہ بات کو آپ اچھے سے لکھ لیں گے۔ ویڈیو کو پاؤز کریں گے، اس کے بعد لکھ لیں گے، اس کو پڑھتے رہیں گے۔ پھر جو میں اگلا ویڈیو اپلوڈ کروں گا، تو اگلا ویڈیو اپلوڈ کرنے سے پہلے آپ لوگ یہ سب کو اچھے سے پڑھ لیں گے، ریوائز کر لیں گے۔ اوکے، تو چلیے اب ہم لوگ مختصر ترین سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو مختصر ترین سوالات کو اچھے سے دیکھیں گے، آپ لوگ غور سے دیکھیں گے۔ ہاں، ایک بات میں بتا دوں کہ اگر وہ بچے دیکھ رہے ہیں جن کی پوری تیاری ہو چکی ہے، تو وہ بچے بھی اچھے سے دیکھیں، کیونکہ ان کا ریوائز ہو جائے گا۔ کم وقت میں ہی دیکھنا ہے، اور 2 چیپٹر کور کروں گا۔ تھوڑی 1 گھنٹہ کا ویڈیو بننے جا رہا ہے،
बस थोड़ा सा 15-20 मिनट तक का वीडियो बनेगा और दो दो चैप्टर है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब इसमें कवर होने जा रहा है। तो हम लोग मुख्तसर तरीन सवालात की तरफ बढ़ते हैं। तो मुख्तसर तरीन सवालात में जो सबसे पहला सवाल है वह है कि आग, हवा, पानी और ख़ाक में सबसे कमतर किसको समझा जाता है। आप लोगों को पता होगा कि आग, हवा, पानी और ख़ाक में सबसे कमतर मिट्टी को समझा जाता है। यहाँ जो ख़ाक लिखा हुआ है, ख़ाक का मतलब मिट्टी ही होता है। सवाल नंबर दूसरा है, मिट्टी के साथ दुनिया क्या क्या सलूक करती है। तो यह मखलूक के पाँव से रौंदी जाती है। जैसे हम लोग चलते हैं किस पे, मिट्टी पे ही तो चलते हैं, तो मखलूक के पाँव से रौंदी गई ना मिट्टी, तो इसलिए इसका सही आंसर यह मखलूक के पाँव से रौंदी जाती है। चंबेली और मोतिया के तेल से भी अहम मिट्टी का तेल है। कैसे? क्योंकि उसके दम से दुनिया में उजाला है। भले ही चंबेली और मोतिया के तेल में बहुत ही खुशबू है, अच्छी है, लेकिन वो जो मिट्टी का तेल है, मिट्टी के तेल से वो मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि वे पूरे दुनिया को उजाला करती है मिट्टी का तेल। सवाल नंबर 4 है, मिट्टी का तेल देखकर लोग क्यों नाक भौं चढ़ाते हैं। तो ये तो सब जानता है, बच्चा भी जानता है कि मिट्टी के तेल में बहुत ही बदबू रहता है, इसलिए आदमी जैसे मिट्टी के तेल को देखता है तो नाक को बंद करने लगता है। तो मिट्टी के तेल को देखकर लोग नाक भौं क्यों चढ़ाते हैं, तो बदबू की वजह से। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बदबू की वजह से। मिट्टी का तेल तमाम तेलों से क्यों बढ़ चढ़ कर है। तो मिट्टी का तेल ज़रूरत और इफ़ादियात के लिहाज से तमाम तेलों से बढ़ चढ़ कर है। सवाल नंबर 6 और इस चैप्टर का जो मुख्तसर तरीन सवालात है उसका लास्ट सवाल, मिट्टी का तेल बिल्कुल बेगर्ज और बेताल्लुक़ है। कैसे? जवाब, अपनी सलाह की पॉलिसी की वजह से। तो हम लोगों का एक चैप्टर ख़त्म हो गया, तो हम लोग एक मरतबा फिर से ख्वाजा हसन निज़ामी के बारे में कुछ और जानकारी ले लें कि ख्वाजा हसन निज़ामी की तालीम कहाँ हुई, उनका जो नाम था, असल यहाँ पे नाम भी पूछा जाता है कि ख्वाजा हसन निज़ामी नाम कौन दिए। तो ये ख्वाजा हसन निज़ामी अल्लामा इकबाल जो एक शायर थे, आप लोगों को पता होगा, उन्होंने ही इनको ख्वाजा हसन निज़ामी के नाम से पुकारा और ये इसी नाम से मशहूर हो गए। ऐसे तो इनके वालिदैन कासिम अली इनका नाम रखे थे, जो इनके वालिदैन माँ बाप को कहते हैं, पता है ना आप लोगों को। तो कासिम अली रखे थे इनका नाम, और इनके जो मामू थे वो अली हसन कहकर पुकारते थे। ये भी अच्छे से नोट कर ले, ये सब का नोट बना ले आप लोग। ख्वाजा हसन निज़ामी ने 200 से ज़्यादा किताबें लिखे थे। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ख्वाजा हसन निज़ामी कितने किताब लिखे थे, तो क्या देंगे आप लोग? 200 से ज़्यादा किताबें लिखे थे। और अब हम लोग बढ़ेंगे अगला चैप्टर, जैसा कि मैं आप लोगों को बता ही दिया हूँ कि बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक है, जिनके मुसन्निफ़ सैयद सुलेमान नदवी हैं। तो अगले चैप्टर से बढ़ने से पहले मेरा आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर आप लोग पहली मर्तबा विज़िट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि मैं आप लोगों के लिए जो इतना मेहनत कर रहा हूँ, 25 दिनों में ही सिर्फ पूरे उर्दू का सिलेबस ख़त्म करना ये मामूली बात नहीं है। तो इसके लिए आप लोग मेरा साथ दें, मेरा सपोर्ट करें। एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं होता, लेकिन मुझे एनर्जी मिलेगी, मुझे लगेगा हाँ बनाने में कुछ फ़ायदा है, बच्चे देख रहे हैं। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा है, उससे मैं मोटिवेट हूँगा ना, मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ बच्चे देख रहे हैं, बच्चे को अच्छा लग रहा है। जहाँ पर नहीं समझ में आवे वहाँ पे कमेंट करके पूछिए, मैं बताऊँगा। आप लोग के लिए ही तो हूँ, आप लोग कमेंट करें, पूछें, मैं बताऊँगा, हर सवाल का आंसर दूँगा। तो आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब्सक्राइब कर दिए होंगे। तो चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अगले चैप्टर में भी उसी तरीके से पहले ख्वाजा हसन निज़ामी जैसे उनके बारे में मुख्तसर में जान लिए हैं, वैसा ही सैयद सुलेमान नदवी के बारे में भी हम लोग कुछ जान लेते हैं। तो सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कब हुई थी? तो सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश
22 नवंबर 1884 को हुई थी। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि उनकी पैदाइश 22 नवंबर 1884 को हुई थी। उनकी वफ़ात कब हुई थी? 23 नवंबर 1953 को हुई थी। कब हुई थी? 23 नवंबर 1953 को। उनके वालिद का नाम क्या था? उनके वालिद का नाम सैयद अबुल हसन था। उनका पहला मज़मून ख़ातून की तालीम के अनवान से 1902 में शाये हुआ। ये सब मैं आप लोगों को इसलिए स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग इसे हमेशा देखते रहें तो याद रहेगा। और बीच बीच में जो मैं आप लोगों को बोलता हूँ, कोई कोई जैसे ऑब्जेक्टिव रहता है, जैसे उनकी वफ़ात कहाँ हुई थी, तो उनकी वफ़ात कराची में हुई थी। तो जो पाकिस्तान में जो कराची है वहीं उनकी वफ़ात हुई थी। तो ये सब को आप लोग लिखेंगे, ठीक है ना। अब मैं बढ़ता हूँ, जो मुख्तसर तरीन सवालात हैं, मुख्तसर तरीन सवालात की तरफ हम लोग चलते हैं। इससे हमेशा पूछे जाते हैं, हर साल इससे एक दो तो क्वेश्चन रहते ही हैं बोर्ड में 2 नंबर वाले में। और ये इस दफ़ा तो आप लोगों को पता ही है कि डबल कर दिया गया है ऑप्शन, तो इस दफ़ा तो और रहेंगे। हाँ, एक जानकारी मैं दे दूं कि जो फर्स्ट चैप्टर है खाका, वो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के द्वारा जो लिखा गया है, उसका मैं वीडियो बना चुका हूँ। वो आप लोग मेरे चैनल पर जाएं और उसे प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ पर 12th क्रैश कोर्स होगा, उस पर जाएंगे तो वीडियो देख लेंगे। ऐसे मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। चलिए, इस बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक का जो मुख्तसर तरीन सवालात है उसको हम लोग देखते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला जो है सवालात, भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या है? तो भूख कैसे टूटती है? नाश्ता करने से भूख टूटती है, तो इसका सही आंसर नाश्ता हो जाएगा। भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या है? नाश्ता। सवाल नंबर 2 है, सैयद सुलेमान नदवी कितनी ज़बानों के माहिर थे? जवाब 4 ज़बानों के, अरबी, फ़ारसी, उर्दू और अंग्रेज़ी। इसको याद करने का एक आसान तरीका मैं बता देता हूँ कि इसमें अरबी है, फ़ारसी है, उर्दू है और अंग्रेज़ी है। क्या नहीं है? हिंदी नहीं है। तो ऐसे हम लोग जान सकते हैं कि हिंदी को छोड़ के बाकी सब। तो 4 ज़बानों के माहिर है, लेकिन ये याद रखेंगे कि 4 ज़बानों के माहिर, अरबी, फ़ारसी, उर्दू और अंग्रेज़ी। अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? अरबी में नाश्ता को फ़तूर कहते हैं। जैसे इंग्लिश में नाश्ता को क्या कहते हैं? ब्रेकफास्ट कहते हैं। उसी तरीके से अरबी में नाश्ता को फ़तूर कहते हैं। फ़तूर के मानी बताइए। फ़तूर के मानी तोड़ने के हैं। क्या है फ़तूर के मानी? फ़तूर के मानी तोड़ने के हैं। लफ्ज़ निहार किन 2 ज़बानों में इस्तेमाल होता है? तो ये जो लफ्ज़ निहार है वो फ़ारसी और हिंदुस्तानी ज़बान में इस्तेमाल होता है। अगर आप लोगों के पास किताब होगा कहकशा उर्दू, अब तो उतना टाइम नहीं है, लेकिन अगर टाइम मिला तो कभी पढ़िएगा, किताब होगा तो इसमें लिखा हुआ है कि लफ्ज़ निहार 2 ज़बानों के लिए इस्तेमाल होता है, फ़ारसी और हिंदुस्तानी ज़बान के लिए। कलई किस ज़बान का लफ्ज़ है और उसके मानी क्या है? तो कलई अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और मानी रांगा है। सवाल नंबर 7, सुर्ख़ी से क्या मुराद है? तो सुर्ख़ी से मुराद अनवान है। ये सब बहुत छोटा छोटा सवाल है और उर्दू में जो है 2 नंबर में ऐसा ही पूछा जाता है। सवाल नंबर 8 है, अहदी और अहद के फ़र्क को वादा कीजिए। जवाब अहद के मानी सुस्त और काहिल के हैं और अहद के मानी अकेला। सवाल नंबर 9 है, कलई खोलना और कलई फेरना के मानी में क्या फ़र्क है? जवाब कलई खोलना के मानी किसी के ऐब को ज़ाहिर करता है और कलई फेरना के मानी किसी के ऐब को छुपाना है। इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे कि खोलना का मतलब कि ऐब जाहिर कर दिया और फेरना यानी कि ऐब को छुपा दिया। कैसे याद करेंगे कि खोलना, कलई खोल दिया यानी कि ऐब को जाहिर कर दिया, और फेरना यानी कि ऐब को छुपा लिया। कलई को अरबी और फ़ारसी में क्या कहते हैं? तो कलई को अरबी में लिसान और फ़ारसी में रांगा कहते हैं। ये सब बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन सब है और ये एक क्वेश्चन इसमें
چھوٹ گیا ہے، جو ہے سوال نمبر 11 ہے۔ اگر آپ لوگوں کے پاس کتاب ہوگا تو کتاب میں دیکھیں گے کہ سوال نمبر 11 میں ہے کہ پورب اور پچھم کی زبانوں سے کون سی زبانیں مصنف مراد لیتا ہے۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا اسے آپ لوگ لکھ لیں گے کہ پورب کی زبان سے مصنف کی مراد عربی زبان ہے اور پچھم کی زبان سے مراد انگریزی ہے۔ تو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا آج کے ویڈیو میں۔ پھر اگلے ویڈیو میں 2 چیپٹر کو پھر لے کر آؤں گا۔ آپ لوگوں سے پھر ایک مرتبہ گزارش ہے کہ آپ لوگ اگر میرے چینل کو سبسکرائب ابھی تک نہیں کیے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ میں جیسے ویڈیو ڈالوں آپ کے پاس جائے اور آپ دیکھیں اور آپ تیاری کر سکیں۔ اور ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر دیں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ویڈیو کیسا لگا، کیونکہ مجھے لگے گا کہ ہاں ویڈیو سامنے والے کو کیسا لگ رہا ہے۔ تو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ پھر السلام علیکم، بائے۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کل نئے انداز میں۔ جب تک کے لیے بائے۔